My name is Rajat Wilson, PSI Rajat Wilson of ACP 10 Battalion, Tapgram। मैं उन सभी दोस्तों को मैं बात बोलना चाहूँगा जो नए एसआई के लिए, हम लोग का वेस्ट बंगाल एसआई के लिए जो तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, उनको लिए मेरा सजेशन है कि वो मैथ के लिए अग्रवाल का, ये दो तो आप लोग प्रीफर कर सकते हैं, और जीके के लिए आप लुसिएंट और अरिहंत दोनों आप पढ़ सकते हैं एक एज ए जनरल नॉलेज के लिए। और रीजनिंग तो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, वो बढ़िया। इंग्लिश थोड़ा तैयारी अच्छा कर लीजिएगा तो आपका प्रीलिम्स आराम से निकल सकता है। तो सर मैं पूछना चाहूँगा कि मतलब क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है? कोई अगर कोचिंग लेता है तो, या नहीं लेता है तो क्या है, उसमें क्या डिफरेंस होगा? नहीं, मैंने कोई किसी किसी का ऐसा होता है ना जिसका मैथ इंग्लिश अच्छा है, उनके लिए मेरे ख्याल से दरकार उतना ज़रूरी नहीं होगा कोचिंग के लिए। उनका जो मैथ पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा और बाकी वो पढ़ सकते हैं, जनरल स्टडीज़ इंग्लिश ये सब वगैरह पढ़ सकते हैं। अच्छा सर, हिस्ट्री के लिए आप क्या बताएंगे? हिस्ट्री के लिए तो जो बुक मैंने पढ़ा वही लुसिएंट का पढ़ा। अच्छा और बाकी बात जो टेंथ 12th तक का जो बुक है स्कूल का, वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, से वो बढ़िया हो सकता है। और सर ये प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद अब मेंस के लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा? जैसे मेंस के लिए आप खुद से नोट्स बनाइए, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, उससे आप खुद से अलग से नोट्स तैयार कीजिए, इतना मार्क्स का ये होगा, आप तैयारी कर सकते हैं। कोई भी इंग्लिश का होगा उसका आप ऐसे ट्रिसाइज ये सब बढ़िया से करिए। जी। तो सर आपने फिजिकल के लिए क्या क्या किया था? फिजिकल के लिए मैं दौड़ता था डेली कम से कम 2 किलोमीटर। अच्छा। उसमें टाइम पहले तो मुझको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, फिर धीरे धीरे वो टाइम में हो गया। अच्छा। उसके बाद हम लोग को तो था 800 मीटर, किंतु मैं 1.5 से 2 किलोमीटर दौड़ता था। अच्छा। उसके बाद 800 मीटर के लिए मैं अलग से वो टाइम निकाल के वो कर लेता था। तो सर ये आपका अभी सर्विस कितना साल हो गया है? अभी हम लोग का ये लगभग 1.5 साल। 1.5 साल। ठीक है सर, तो थैंक यू, आपने बहुत अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों को मतलब सजेशन दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी यूथ्स लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सर। তো আমি এখনও ফুললি সাব ইন্সপেক্টর হয়নি, এখনও প্রভিশনারি সাব ইন্সপেক্টর আছি। তো আমি এসএপি 10 ব্যাটালিয়ন থেকে, তো আমরা 2019-এ সিলেক্ট হয়েছি এবং 2019-এই জয়েন করেছিলাম এই সাব ইন্সপেক্টরে। তো আমি যারা নবাগত যারা প্রিপারেশন নিচ্ছে সাব ইন্সপেক্টরে, তাদের জন্য কয়েকটা কথা বললো। আমার যে কলিগ ও অনেক বুক লিস্ট কিছু বই প্রেফারেন্স দিল, তো আমি জাস্ট দু একটা দেবো। তো আমি যারা ইংলিশে দুর্বল, বিশেষ করে মেইনসের জন্য বা প্রিলিমসের জন্যই হোক, ইংলিশটাও ভালো খুব দরকার। তো আমি ইংলিশের জন্য বলবো এসপি বক্সির বইটা, মানে সে গ্রামার হোক যাই হোক তার জন্য পড়ার জন্য। আর মেইনসের জন্য বলবো RS অগ্রওয়ালের ডেসক্রিপটিভ যে বইটা সেটা পড়ার জন্য। আর জিওগ্রাফি, বিশেষ করে জিওগ্রাফি থেকে প্রচুর কোশ্চেন আসে, তো জিওগ্রাফি থেকে আমি বলবো কার্তিক চন্দ্র মণ্ডলের যে বইটা সেটা ভালো করে পড়ার জন্য খুঁটিয়ে। তাছাড়া এই 9-10-এর বইগুলো, বিশেষ করে স্কুল লেভেলের বইগুলো ভালো করে পড়ার জন্য। এটা মেইনসে যেমন কাজ করবে তেমনই প্রিলিমসেও অনেক উপকার হবে সবার। আর এরপরে বলবো আমি ফিজিক্যালের জন্য। ফিজিক্যাল তোমরা মানে পরীক্ষায় পাস করার পরে সেরকম শুরু করবে না, আগের থেকেই শুরু করবে, যাতে তোমাদের মানে রিদমটা থাকে। নাহলে হুট করে আসলে তোমরা তখন ঘাবড়া যাবে। ওই জন্য ডেইলি আগের থেকেই বিকালে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা হোক, যেটুকুই সময় পাবে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা চেষ্টা করবে ফিজিক্যালটা ইমপ্রুভ করার জন্য। আর ফিজিক্যালি সেরকম হার্ডও না, একটু মনের জোর দিয়ে প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে আশা করি সবার মধ্যে। আর সবথেকে বলবো যে যেইটাই প্রিপারেশান নিচ্ছ সেটা হচ্ছে সবথেকে কন্টিনিউ রাখবে, কোনো দিনও ব্রেক দেবে না। মানে কোনো সময়ই ব্রেক দেবে না, ব্রেক দিলেই সেটা তোমার যেটা শিখছো সেটা অনেক দুর্বল হয়ে পড়বে। একটাই হলো বিলিভ ইয়োরসেলফ, আর সবসময় নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখবে। আর এটা অনেকেই বলে যে কোচিং সেন্টারে যেতেই হবে কোনো ভালো চাকরি পেতে গেলে, এটা আমি মনে করি না এটা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ আমি নিজে কোনো দিনও কোনো কোচিং সেন্টারে পা বাড়াইনি। আমি নিজের প্রতি বিশ্বাস রেখে নিজে কন্টিনিউ প্রিপারেশান রেখেই আমি এই জায়গায় এসেছি।
ওই জন্য বলবো যে নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখো। যাদের একটু দুর্বল, যাদের মনে হয় যে না আমার কোচিং সেন্টারে গেলে ভালো হবে, কোনো গাইডেন্স দিলে ভালো হবে, সে অবশ্যই যাবে। কিন্তু যে নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখবে যে না আমি নিজেই করতে পারবো, সে অবশ্যই নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখা দরকার। এবং অবশ্যই বলবো যে ফুললি নিজের প্রতি বিশ্বাস রেখে এবং কন্টিনিউ রেখে অবশ্যই চেষ্টা করলে অবশ্যই সাফল্য পাবে। থ্যাংক ইউ স্যার, অনেক আপনাকে ধন্যবাদ জানি। কিন্তু আরেকটা জিনিস আমার প্রশ্ন আছে কি কত ঘন্টা প্রিপারেশন নিতে হবে? মানে ধরুন একটা স্টুডেন্ট যে মানে প্রিপারেশন নিচ্ছে, ধরুন একটা 24 ঘন্টার মধ্যে ও কতটা টাইম দিলে ভালো? আমি বলবো প্রত্যেকটা সাবজেক্টই মোটামুটি ডেইলি কভার করার। তো যে যতটা তাড়াতাড়ি সেই সাবজেক্টগুলো কভার করতে পারবে, যতটা যে রিভাইজ দিতে পারবে, আর টাইমটা সেরকমই তার উপর ডিপেন্ড করবে। তবু মিনিমাম 4-5 ঘন্টা করে তো অবশ্যই পড়া দরকার আমার মনে হয়। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। मेरा नाम अजय लामा है, मैं SCP 12 बटालियन से हूँ। मैं हमारे जितने भी यूथ सब है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, वो सबको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग भी ठीक तरह से पढ़िए और टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज कीजिए। और बुक की सजेशन के बारे में जैसे कि आप आर्यन पब्लिकेशन का बुक सब है, उसमें ऑब्जेक्टिव आता है 14,000 प्लस का, वो सब प्रिपेयर कीजिए। और साथ ही डिस्क्रिप्टिव बुक्स भी पढ़िए। और मैथ्स के लिए जैसे कि फास्ट ट्रैक आर्यन प्रैक्टिस मैथ्स भी है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इंग्लिश में जनरल इंग्लिश का कोई भी आर्यन का पब्लिकेशन का जो भी बुक पढ़ सकते हैं। मेनली मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सब कवर करना होता है। ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और टाइम को इतना यूटिलाइज कीजिए कि इतना पढ़े कि आपको रात में सोचने पर लगे कि हाँ मैंने आज इतना ज़्यादा पढ़ लिया कि अब नहीं पढ़ पाऊँगा। तो इतना ज़्यादा पढ़े तभी जाकर आपको कुछ कर पाएंगे। और सर ये फिजिकल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? फिज़िकल के बारे में जैसे कि मैंने तो ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं किया, खाली 1 महीना ही प्रैक्टिस किया था रनिंग के लिए। पहले मेरा फिज़िकल एक्टिविटी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने 1 महीना में इतना स्टेमिना हासिल कर लिया कि मैं 800 मीटर 2 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट कर पाया। तो फिज़िकल के लिए उतना परेशानी होने वाला बात नहीं है। 800 मीटर ही दौड़ना है 3 मिनट में। तो सर मेंस के लिए क्या बताएंगे? क्या कोई कोचिंग लेना ज़रूरी है? मेंस के लिए मैंने मेरा स्ट्रेटेजी बताना चाहूँगा आप लोग को, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया। मैंने खुद से प्रिपेयर किया। इंटरनेट अभी तो इंटरनेट का सोर्स ही है सभी के पास, सबके साथ है। तो इंटरनेट सोर्स को यूज़ कीजिएगा। आप IAS की तैयारी इंटरनेट में कर सकते हैं, आप WBCS की तैयारी इंटरनेट में कर सकते हैं। तो क्यों नहीं ये SI सब इंस्पेक्टर का तैयारी नेट में नहीं कर सकते? उसमें स्ट्रेटेजी बनाइए, अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाइए, पढ़िए ठीक से। डिस्क्रिप्टिव में जिस तरह का सिलेबस रहता है, क्वेश्चन आता है, उसी तरह से आप प्रिपेयर कीजिए, ज़रूर आप भी सक्सेस हो जाएंगे। तो सर अभी मतलब जो आपने इतना अच्छा सजेशन हम लोग को दिया, तो और एक मैं चीज़ पूछना चाहूँगा, जो वाइवा के लिए बहुत लोग डरते हैं, ठीक है, तो वाइवा में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वाइवा में डरने वाली कोई बात नहीं है। आपके पास जो है वही इंटरव्यूअर को बताना है। आप जो मिला के मतलब उसमें मसला डाल के मत बोलिएगा। इंटरव्यू में जो पूछते हैं, आप जो रियलिटी में जो आप है वही आप बोलिए, सच बोलिए। अगर आप झूठ बोलते भी तो इंटरव्यूअर के पास इतना तो मतलब साइकोलॉजिकल टैक्टिस होता ही है कि वो पकड़ लेता है झूठ बोलने से। तो आप रियल में क्या है, आप क्या चाहते हैं सोसाइटी के लिए, गरीब के लिए, देश के लिए क्या चाहते हैं, वही आप बोलिए, आप ज़रूर पास कर जाएंगे। ठीक, इंटरव्यू में परेशानी होने वाली। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया। तो आई होप कि हमारे जितने भी आने वाले यूथ्स हैं उनको ज़रूर ये आपका ये वीडियो से ज़रूर हेल्पफुल होगा। थैंक यू सर।